Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your different examination. You are investing a lot of efforts of yours. So this is again another video which is very important, which is part 3 of the PCR series which I am currently providing. So this part 3 will be providing you the details of how many different types of PCR are there and what is its application. Like if we are talking about the real-time PCR, what is its application? What is the application of multiplex PCR and how it differs from each other, where they are employed. So every detail I will be providing you in this video. So before moving forward, do subscribe the video and do like it if you genuinely find it useful, and also share with your friends to get like so much detail about PCR. So without further delay, let's start the video. So conventional PCR, right? So every time whenever I am mentioning anything related to techniques, so whenever we will talk about any of the technique, always there will be a flow like basic towards the advanced one, right? Always we will have a this type of flow always every time whenever we are making anything. So we will have a basic version of it. After using it for so long, we find that there are certain restrictions in it. We cannot do this particular task in this uh, instrument. So accordingly, people modify it. So then we will have a advanced instrument that will provide you the restricted applications or whatever part which you are not able to do it in the basic version, right? So we are firstly having the conventional PCR, right? So what is conventional PCR? Conventional PCR, as the name suggests, it is like the very basic and the very beginning foundational molecular biology technique, right? So a DNA amplification using the primers, stack polymerase, and thermal cycling through a thermal cycler, right? The very basic one. And the second part, I have provided you the ingredients of PCR. So in this conventional PCR, we use those particular ingredients. And after that, we have to run a gel that is made up of agarose, which is a polysaccharide. So in that agarose, we run our amplicons, and on the basis of their charge by mass, they separate, right? So the higher the mass of the amplicon, so slower will be the migration. It means the heavier weight molecule will be near the well, right? It is only like this much of length it has traveled, and if it is lighter in weight, you can see how much distance it has traveled. So this is a agarose gel electrophoresis. So in the conventional PCR, it will amplify it, and to observe your result you need to run a gel, right? So if we are having one task to do the PCR and the second task is to do the gel electrophoresis, agarose gel electrophoresis, right? So this becomes tedious, right? You always have to do the PCR and then you have to run the gel, so you need so much of time, and also you need so much of tools and uh, s- skillful individual, right? So this is kind of qualitative. You are only measuring that whether you found the band or not. यानी कि अगर आपको band दिखा, then आपका positive result आप interpret करते हो. नहीं दिखा, it means you are saying that it has not been amplified, यानी negative हो. But this is not the like correct way or the accurate way you can say. So this is mere qualitative data, right? It is a qualitative data, presence or absence. So it has low sensitivity compared to the advanced methods, right? So its application is basically in gene amplification, cloning, and basic diagnostic, right? But it is not a quantitative one, because you are analyzing your result based on mere the presence or the absence of band, right? So for this reason, we need to modify this particular conventional PCR, and accordingly, you are having the real-time PCR. ठीक है? You are having the real-time PCR. ठीक है? जिसे हम quantitative PCR भी कहते हैं, in which it what we do, we measure the DNA amplification in real time using the fluorescence.
ठीक है, वी यूज द फ्लोरेसेंस मेथड. नाउ if you have like visited any of the molecular diagnostic lab in a hospital, let's say, or any such premier institute, you will probably have observed the real time PCR. ठीक है, so real time PCR, first of all, it is known as the quantitative PCR. It means it is a quantitative instrument. It will provide you the data quantitatively, so it is not the qualitative. ये qualitative नहीं है, ये क्या है? It is the quantitative. ठीक है, so this Q is for quantitative. Now how it provides the exact result in a quantitative way? So because of the real time fluorescence. Now from where these real time fluorescence will come? Because of this particular thing, that is cyber green and techman probes. ठीक है, अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो QPCR क्या होता है, इसमें आप एक्चुअल में एनालाइज कर सकते हो कि कितना DNA एम्पलीफाई हुआ है. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, जैसे साइबर ग्रीन इज अ डाई. ठीक है, इट इज साइबर ग्रीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डाई विच विल बाइंड टू एनी ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, साइबर ग्रीन किससे बाइंड होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बाइंड होगा. हियर यू कैन सी. सो द फ्लोरेसेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीफिकेशन. यानी जितना ज्यादा आपको फ्लोरेसेंस दिख रहा है, इंटेंसिटी, as the DNA increases the fluorescence intensity will also increase. यानी फ्लोरेसेंस इंक्रीज होगा तो DNA एम्पलीफिकेशन भी ज्यादा हुआ है मतलब. ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ दिस मेथड इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑल्सो लाइक इसमें आप क्वांटिटेटिव डिटेक्शन कर सकते हो. आउटपुट किस फॉर्म में ये देता है? CT वैल्यू ये प्रोवाइड करता है, साइकिल थ्रेशोल्ड. एंड एज आई टोल्ड, दिस इज अ क्वांटिटेटिव. यू कैन डू द एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन भी आप कर सकते हो, रिलेटिव भी कर सकते हो. ठीक है, वी डू सम कंपैरेटिव स्टडी. जैसे आपका एक कंट्रोल ग्रुप है, आपका एक ट्रीटमेंट ग्रुप है, सो आप रिलेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी भी कर सकते हो एंड एब्सोल्यूट स्टडी भी कर सकते हो. हाईली सेंसिटिव होता है ये बिकॉज यू आर हैविंग द रियल टाइम प्राइमर्स एंड as per the fluorescence of the primer binding towards your amplicon, you will like provide the result, you will have the result. So quantification is possible. Application in gene expression. ठीक है, suppose you have X gene, you have Y gene. अब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में दोनों ही जीन है, आप एक्सप्रेशन चेक कर रहे हो, तो सपोज आपने एक्सप्रेशन चेक किया क्वांटिटेटिवली, आपको एक्स का जो फ्लोरेसेंस है वो बहुत कम मिला एंड वाई का बहुत ज्यादा मिला. तो जिसका जितना ज्यादा एम्पलीफिकेशन हो रहा है मतलब वो ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है. तो जनरली वी यूज रियल टाइम PCR फॉर द जीन एक्सप्रेशन स्टडी and also for the different disease diagnostic, not only just viral load but also for different bacterial, mycological and other pathogenic diseases, we use this real time PCR. ठीक है, so this is very very important. ठीक है, now the quantification cycle, that is CQ upon CT. ठीक है, CQ-CT क्या होता है? द फ्रैक्शनल साइकिल इसे बोलता है, फ्रैक्शनल साइकिल इसे बोला जाता है, द फ्रैक्शनल साइकिल नंबर वेयर द फ्लोरोसेंट सिग्नल क्रॉसेस अ डिफाइंड थ्रेशोल्ड. ठीक है, यानी जो एक डेफिनेट थ्रेशोल्ड है वो हिट करने के बाद में, जैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो, अ लोअर CQ इंडिकेट्स अ हायर स्टार्टिंग कंसंट्रेशन ऑफ द टारगेट DNA. ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको इसमें ग्राफ भी मिलता है. और अगर आप इसे डायग्राम में देखेंगे, सो यू आर हैविंग दिस रिएजेंट एंड आप PCR प्लास्टिक में भी लगा सकते हो, ये प्लेट में भी लगा सकते हो 96 वेल वाले में, और एल्स यू कैन ऑल्सो डू दिस इन ट्यूब्स. ठीक है, ट्यूब्स आते हैं उसमें भी आप कर सकते हो. दिस इज अ रियल टाइम PCR इंस्ट्रूमेंट. देयर आर सो मेनी ब्रांड्स अवेलेबल फॉर दिस रियल टाइम PCR इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं. एंड यू विल हैव सम PCR एनालिसिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड आप उससे फिर अपना जो भी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है वो कर सकते हो. ठीक है, नाउ इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है. सिर्फ PCR इतना ही नहीं होता है कि कन्वेंशनल और रियल टाइम, यू आर हैविंग सेवरल मोर PCR. ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और चीजें. ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द मेन PCR टेक्निक जो ज्यादातर एम्प्लॉय होता है. ठीक है, इसमें हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं, बट इसके बाद के पार्ट में हम डिटेल में कवर करेंगे एक एक PCR को जो कि इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाउ दिस इज अ
diagram related to this one, real time PCR. ठीक है, सो रियल टाइम PCR जो होता है वो उसका प्रिंसिपल आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो PCR का प्रिंसिपल अगर आप जानोगे तो ही आप उसका एप्लीकेशन समझ पाओगे। ठीक है, सो एज आई टोल्ड इट इज अ क्वांटिटेटिव वन। ठीक है, सो you need to know how it provides the quantitative data. ठीक है, just a minute, my pen is not working. Hmm, wait, let me reconnect and then disconnect it. Yes, it is working. See, so this diagram is beautiful to explain the real time PCR. ठीक है, so this is example of the Techman probe used in real time PCR. ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है पेन, बट इट्स ओके। नाउ टेकमैन assay इज यूज्ड इन रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, क्वांटिटेटिव पीसीआर में यूज करते हैं। और ये टेकमैन प्रोब क्या है, बेसिकली इट इज अ फ्लोरोसेंट प्रोब। फ्लोरोसेंट प्रोब है, ये फ्लोरोसेंस देगा, उसके अकॉर्डिंगली आप जान पाओगे कि कितना एम्प्लीफिकेशन हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, आपके क्या क्या होंगे इसमें, आपके इसमें फॉरवर्ड प्राइमर होगा, रिवर्स प्राइमर होगा, और एक होगा आपका टेकमैन प्रोब। ठीक है, अब उसमें क्या क्या होगा, उसमें आपका होगा एक फ्लोरोफोर। ठीक है, जिसे हम रिपोर्टर डाई भी कहते हैं। एंड इसके अलावा एक होगा क्वेंचर। ठीक है, सो अगर प्रोब इंटैक्ट है, ठीक है, इफ योर प्रोब इज इंटैक्ट, प्रोब अगर इंटैक्ट है मतलब कोई फ्लोरेसेंस नहीं आएगा। ठीक है, कोई फ्लोरेसेंस नहीं आएगा। क्वेंचर क्या करेगा, सिग्नल को ब्लॉक कर देगा, और जैसे ही ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, फ्लोरेसेंस आएगा। ठीक है, here you can see this is your forward primer, this is your reverse primer. ठीक है, this is your fluorophore and this is your quencher. तो ये जब इंटैक्ट होंगे तो कोई भी एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी फ्लोरेसेंस नहीं आया है। ठीक, अब जैसे जैसे ये यू कैन सी हियर ये डिस्टेंस हो रहा है इसमें, यू कैन सी हियर ये जो है ये वाला क्वेंचर ये अलग हो गया है, एंड यू कैन सी हियर दी फ्लोरेसेंस, यानी कि इंटैक्ट नहीं है, तब यू आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग सिग्नल, यानी फ्लोरेसेंस आपको आ रहा है, विच विल इंडिकेट द एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, सो रिपोर्टर डाई विल डू व्हाट, इट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्वेंचर, एंड इसका मतलब है कि फ्लोरेसेंस एमिट हो रहा है, तो जितना ज्यादा डीएनए उतना ज्यादा ये क्लीवेज आपको देखने को मिलेगा, एंड उतना ज्यादा फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो ये जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंगली सीटी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, सो दैट इज हेल्पफुल इन द जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस एंड पैथोजन डिटेक्शन। ठीक, अब जाते हैं आगे। नाउ वी आर हैविंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर। ठीक है, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर which is again the important one. So जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पीसीआर है वो क्या होता है, एंड अभी जस्ट मैंने आपको बताया रियल टाइम पीसीआर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आरटीपीसीआर। ठीक है, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड वी आर हैविंग क्यूपीसीआर। ठीक है, क्यूपीसीआर या रियल टाइम पीसीआर, तो क्यूपीसीआर हम लिखते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव वन। So RT-PCR converts basically RNA into the cDNA. ठीक है, and RT-qPCR क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। So basically RT-qPCR is can see here real time RT-PCR, यानी फर्स्टली आपका cDNA बनेगा, देन आपको क्वांटिफिकेशन होगा, so this is known as QRT-PCR. नाउ देर इज डिफरेंस बिटवीन RT-PCR एंड जो QPCR है। तो आप समझ आया, अगर RT लिखा है मतलब वो रियल टाइम नहीं है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR है। ठीक है, इसका काम मेनली कब होता है, mRNA एक्सप्रेशन में और RNA वायरस डिटेक्शन में। ठीक है, बिकॉज दिस वी नीड इन दी स्टडी ऑफ दी वायरोलॉजी।
ठीक है, ये देखो ये टारगेट mRNA है, ठीक है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से वी नो दैट थ्रू द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वी कन्वर्ट इट इनटू द cDNA, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फर्दर एम्प्लीफिकेशन होता है, देन वी कैन हैव वेरिएबल नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ एम्प्लीफिकेशन बेस्ड ऑन द टारगेट, ठीक है। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ टेक्निक फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्ट लेवल by converting target mRNA into complementary DNA, that is cDNA, using which enzyme, reverse transcriptase, followed by the amplification of cDNA through normal PCR, ठीक है। तो ये कब काम आएगा, मोस्टली इन mRNA एक्सप्रेशन, कितना ज्यादा एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी वायरस का स्टडी करना चाहते हो तो कितना वायरल लोड है, तब भी ये काम आता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिजिटल पीसीआर, ठीक है, हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है। नाउ व्हाट इज दिस डिजिटल पीसीआर? सो डिजिटल पीसीआर इज अ हाईली सेंसिटिव मॉलिक्यूलर टेक्निक फॉर व्हाट, फॉर द एब्सोल्यूट, फॉर द एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन, ठीक है, फॉर द एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन। नाउ किस चीज के एब्सोल्यूट क्वांटिफिकेशन के लिए? ऑफ कोर्स न्यूक्लिक एसिड, बी इट अ डीएनए और एल्स आरएनए, ठीक है, विदाउट द नीड ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स, ठीक है, बिना स्टैंडर्ड कर्व्स के नीड के वी कैन डू दिस। सो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी पार्टीशन आवर सैंपल्स इनटू थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल माइक्रो रिएक्शंस, ठीक है, यानी जो हमारे सैंपल्स हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, थोड़े 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 थाउजेंड, मतलब छोटे 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 वॉल्यूम में, ठीक है, पूरा फिल कर देते हैं। एंड नाउ what you will do, DPCR means digital PCR will detect the low abundance target, rare mutations and copy number variation with high precision। यानी जैसा कि आपने, आपका जो भी सैंपल था उसको लगभग लगभग थाउजेंड इंडिविजुअल सैंपल्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसकी वजह से आपका जो ऐसे का प्रोसेस होता है दैट बिकम्स वेरी मच सेंसिटिव। यानी कि मान लो कि कहीं रेयर म्यूटेशन हुआ है, ठीक है, तो जैसे मैं इसको सिंपल कैसे समझाऊं, हम किचन में नॉर्मली क्या करते हैं, whenever we are having some grocery, and what we do, we store it in a very usable, like very handy jar, ठीक है, instead of one huge 5 kg jar. Why this is so? Because this will become very difficult to handle it whenever you are making anything, any recipe. So you will face some issue while transferring anything from this 5 kg jar instead of this 100 ml jar, ठीक है। And also इससे कभी भी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, so you will not have the correct measurement. So in this PCR also see if you are having some rare mutation, ठीक है, जो किसी वजह से एक ही ट्यूब में होने की वजह से मिस हो सकता है, आपका जो रिजल्ट है आप मिस कर सकते हो। एंड अगर आपको वो नेगेटिव आता है तो यू आर स्टेटिंग दैट देयर इज नो सच रेयर म्यूटेशन, बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत सारे थाउजेंड में स्प्लिट कर दे रहे हैं, किसी एक में तो आएगा रिजल्ट, इसमें तो आएगा, इसीलिए हमेशा ये रेयर म्यूटेशंस को पकड़ लेता है। अगर बहुत ज्यादा नंबर वेरिएशन है, ठीक है, कॉपी नंबर वेरिएशन है, तो वो भी ये डिटेक्ट कर लेगा विद वेरी हाई प्रिसीजन एज यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड योर सैंपल इनटू थाउजेंड। एंड इसके अलावा लो अबंडेंस टारगेट को भी ये मेजर कर लेता है। सो दिस इज वेरी वेरी लाइक नीड ऑफ द आर है ये, अल्ट्रा सेंसिटिव, हियर यू कैन सी, ठीक है, डिटेक्ट रेयर म्यूटेशंस, लो कॉपी नंबर भी डिटेक्ट कर सकता है। सो इट इज वाइडली यूज इन कैंसर म्यूटेशन डिटेक्शन, लो कॉपी डीएनए डिटेक्शन। तो ठीक है, डीपीसीआर के बारे में क्वेश्चन आए तो नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर इट। नाउ हियर यू कैन सी, सो यू आर हैविंग दिस टेम्पलेट, ठीक है, नॉर्मल टेम्पलेट तो आपको चाहिए ही होगा, प्राइमर, रो, एंड देन दिस वन डीडीपीसीआर रिएक्शन वीक्स, ठीक है। सो इसके बाद ऑटोमेटेड ड्रॉपलेट जनरेटर होता है। नाउ यू डोंट नीड टू डू इट बाई मैनुअली विथ योर पाइपेट, ठीक है, माइक्रो पाइपेट से आपको खुद नहीं करना है। यू विल बी हैविंग सम ऑटोमेटेड ड्रॉपलेट जनरेटर दैट विल इवनली डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट वॉल्यूम्स इन ईच वेल, ठीक है। सी हियर यू कैन सी पीसीआर प्लेट है, पीसीआर प्लेट में आपने ट्रांसफर कर दिया, एंड देन यू कैन सी हियर हाई कंसेंट्रेशन, मीडियम कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो मान लो कि कहीं पे कम हुआ है एम्प्लीफिकेशन, कहीं पे ज्यादा हुआ है देन हाई कंसेंट्रेशन। तो इससे आपका जो आंसर आएगा
वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट और सेंसिटिव आएगा, ठीक है. सो दिस इज वेरी वेरी एडवांस्ड फॉर्म एंड दिस इज वेरी वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स. Now we are having multiplex PCR, which is again one important one. So see, multiplex PCR is what you, as the name suggests, multiplex PCR का मतलब है multiple targets in a single tube. ठीक है. You can see PCR with all 4 primers pair in a single tube. यानी मान लो कि आप अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में आपको चेक करना है, उसके अंदर 4 जीन है. You are having 4 genes in the pathogen. You want to detect it all at once rather than doing it 4 different, 4 individual times. So it will take your time. It will take so many also resources be waste honge. So what you can do, you can move all the primers, all the complementary primers towards that 4 gene, and then you can run in a single tube. So you will be having the result. ठीक है. So multiple primer set amplify different targets in one reaction. It is time saving, it is cost effective, it has certain challenges, right? Because primer design complexity बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें, optimization की जरूरत पड़ेगी, कितना primer कौन सा डालना है, कितना concentration. Like अगर आप एक ही ट्यूब में डाल रहे हो तो ये तो but obvious है कि ये थोड़ा complex तो होगा, ठीक है. इसको पूरा कंप्लीट करना भी, पूरा रिएक्शन मिक्सचर भी रेडी करना, इट विल टेक टाइम एंड सो मच ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है. कुछ भी आप डाल नहीं सकते इसमें. नाउ दिस इज वाइडली यूज्ड फॉर पैथोजन डिटेक्शन पैनल, ठीक है. व्हेनेवर वी आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ, लेट्स सपोज वी आर हैविंग 4 genes from 4 different bacteria. So at the same time we can use the multiplex PCR instead of running it individually, ठीक है. And also for genetic screening we use it. ठीक. Now in this green block you can see a multiplex PCR amplifies multiple targets within a single PCR run in a single reaction vessel from a single sample aliquot instead of performing many separate reactions. तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा ये handy हो गया है. So in other words, targeted amplification of a multiple genes. ठीक है. Now ये एक बहुत ज्यादा वाइडली यूज किया जाने वाला है, ठीक है. जितने भी मेडिकल हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में डायग्नोस्टिक होता है वो मेनली मल्टीप्लेक्स पीसीआर से होता है. नाउ नेस्टेड पीसीआर. व्हाट इज नेस्टेड पीसीआर? सो नेस्टेड पीसीआर एज द नेम सजेस्ट नेस्टेड, ठीक है. It is highly sensitive and specific modification of the standard PCR that uses 2 successive amplification reaction and 2 sets of primers to amplify a target DNA sequence. यानी यहाँ पे क्या होगा, 2 राउंड्स चलेंगे पीसीआर, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट राउंड में नॉर्मल जो एम्पलीफाई हुआ, ठीक है. टू मेक इट श्योर सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर चलेगा, जो सेकेंड प्राइमर होगा इट विल बी सेट इनसाइड फर्स्ट एम्प्लीकॉन, ठीक है. फर्स्ट एम्प्लीकॉन के कॉम्प्लीमेंट्री को होगा, जिससे क्या हो गया, नेस्टेड हो गई. नेस्टेड मतलब क्या होता है, बचाव कर रही, ठीक है, किसी का, या उसी चीज को कंजर्व करके रखना. तो आपका जो फर्स्ट राउंड का एम्प्लीकॉन है, यू आर यूजिंग सेकेंड प्राइमर सेट इनसाइड द फर्स्ट एम्प्लीकॉन, देन यू आर अगेन एम्प्लीफाइंग इट फॉर सो श्योर, यू विल बी सो श्योर कि आपका एम्प्लीफिकेशन जो है वो सही सेट ऑफ जीन का हुआ है. सो इट बिकम्स वेरी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन रुक जाएगा, क्योंकि 2 राउंड, जैसे आप एग्जामिनेशन में एमसीक्यू अगर आपको आया है, ठीक है, 5 एमसीक्यू आया है, तो आपने एक का ए लगाया है, बी लगाया, सी लगाया, डी लगाया, ई लगाया, ठीक है. एंड आप इसको क्रॉस चेक नहीं करते हो, तो हो सकता है आपका ए गलत हो जाए, बी गलत हो जाए, 3 ही सही हो, या 4 गलत हो जाए, 1 ही सही हो. सो यू ऑलवेज नीड टू डू इट ट्वाइस. So nested PCR is on this principle only. It has 2 rounds of PCR. So the second primer set will like amplify the first amplicon. ठीक है. Low DNA samples इसको ये डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि रीएम्प्लीफिकेशन होता है, इन्फेक्शन ये डिटेक्ट करता है. तो nested PCR is a 2-step process. First round uses outer primers to amplify a larger DNA segment. The second round uses nested inner primers, ठीक है, to amplify a smaller target sequence within the first product, ठीक है. और वो एकदम ज्यादा ऐसा नहीं कि पूरा लंबा जो जीन आपका एम्पलीफाई है सबको करो, उसके शॉर्ट स्ट्रेच को एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, स्मॉलर टारगेट सीक्वेंस. नाउ इसका स्पेसिफिसिटी भी हाई होगा, सेंसिटिविटी भी हाई होगा, ठीक है. नाउ हॉट स्टार्ट पीसीआर. सो व्हाट इज हॉट स्टार्ट पीसीआर, व्हाट डज इट सजेस्ट? तो हॉट स्टार्ट पीसीआर, जैसा कि इसका नाम है, इट इज अ
modified PCR that inhibit the DNA polymerase activity until the first denaturation step. ठीक है, इसमें क्या होता है hot start PCR में it is a modification of conventional PCR in which limiting one of the reagents until the heating step reduces the chances of non-specific amplification. देखो जनरली पीसीआर में जो मेन ट्रबल शूटिंग करना पड़ता है ड्यू टू नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग, मतलब हम जहां चाहते हैं टारगेट में ना बाइंड करके वी आर हैविंग लाइक रिपीटेटिव सीक्वेंस इन आवर जीनोम, ठीक है, बहुत सारे आपको स्ट्रेच मिल जाएंगे जहां पे प्राइमर जाके बाइंड कर जाए, ठीक। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, उसका एफिशिएंसी को ब्रिंग डाउन करते हैं, यानी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना उसके बहुत सारे हम वेज ढूंढते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली अलग अलग पीसीआर है, जैसे नेस्टेड पीसीआर है, तो यू विल बी सो श्योर कि आपका टारगेट ही एम्पलीफाई हुआ है, नथिंग एल्स। तो वैसे ही एक हॉट स्टार्ट पीसीआर है जिसमें हम क्या करते हैं, ये नॉर्मल पीसीआर है उसी का थोड़ा सा एडवांस है। तो हॉट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग रिलेटेड टू टेम्परेचर, यानी कि इसमें क्या होता है इन दिस step in this step in this PCR we will inhibit the DNA polymerase activity, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को, डीएनए पॉल की एक्टिविटी को रोक के रखी जाएगी। कब तक रोक के रखी जाएगी, जब तक कि फर्स्ट डीनेचुरेशन स्टेप नहीं हो गया, ठीक है। सो इट विल प्रिवेंट द नॉन स्पेसिफिक प्राइमर बाइंडिंग एंड एक्सटेंशन एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जैसे ही आप पॉलीमरेज को यू नो दैट यू आर यूजिंग अ टैग पॉल, तो टैग पॉल को कितना टेम्परेचर चाहिए, 94 95 इतना टेम्परेचर चाहिए। सो इफ यू आर प्रोवाइडिंग दैट टेम्परेचर इट विल स्टार्ट द एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। सो जिससे कि क्या होगा, इट विल मिनिमाइज द प्राइमर डाइमर फॉर्मेशन एंड ऑल्सो द नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग द पीसीआर स्पेसिफिसिटी एंड यील्ड। ये होता है मेन मुद्दा, ठीक है। नाउ व्हाट इज टच डाउन पीसीआर, हॉट स्टार्ट आपको समझ में आ गया होगा। टच डाउन पीसीआर क्या होता है, टच डाउन पीसीआर का मतलब होता है जिसे हम टीडी पीसीआर कहते हैं, टीडी फॉर टच डाउन। इट इज अगेन अ स्पेशलाइज्ड एंड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द पीसीआर इन विच for what purpose it was designed, it was designed to increase the specificity, sensitivity and yield by minimizing the non-specific binding, non-specific binding को ये क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है। हाउ इट रिड्यूसेस, इट वर्क्स बाय स्टार्टिंग विथ अ हाई एनिलिंग टेम्परेचर, ठीक है। जो हमारा टीएम होता है मेल्टिंग टेम्परेचर से 5 या फिर 10 डिग्री हाई टेम्परेचर इट यूजेस फॉर द एनिलिंग, so as to avoid the non-specific binding, that your primer should not bind to any of the non-specific target. So we use what, we use temperature like 5 or 10 degree high above the melting temperature and then reducing it by 1 to 2 per cycle for the first 10 to 15 cycle. Now eventually reaching the optimal temperature. So we have raised the temperature about 5 degree to 10 degree, then we are minimizing it by 1 to 2 degree in each cycle, till first 10 to 15 cycle. So this will ensure that your primer should not form any dimer and also it will not bind to some non-specific positions. So after lowering it 1 by 1 degree, so it will reach to the optimal temperature that is required for the correct target sequence binding. So this is why it is important and it has improved specificity, right? So you are doing touch down PCR, means start with high analytic temperature, then you are gradually decreasing it. Okay. Now the next one. See, this is conventional PCR, standard tech DNA polymerase and DNTPs. ठीक है. ये एक्चुअली में हॉट स्टार्ट पीसीआर का है। हॉट स्टार्ट पीसीआर में व्हाट वी हैव डन, इनएक्टिव हॉट स्टार्ट डीएनए पॉलीमरेज और हॉट स्टार्ट इनएक्टिव मतलब आपने टेम्परेचर ही नहीं दिया तो डीएनए पॉल आपका एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही आप टेम्परेचर देंगे डीएनए पॉलीमरेज एक्टिव होगा एंड आपका बाइंडिंग होगा। हियर यू कैन सी हमारे कन्वेंशनल पीसीआर में नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी होता है, प्राइमर टाइमर भी होता है, ठीक। नाउ एलील स्पेसिफिक पीसीआर is for detecting the SNP और म्यूटेशन, ठीक है। जीनोटाइपिंग एंड म्यूटेशन में ओवरलैपिंग एक्सटेंशन पीसीआर क्या होता है, जॉइंट डीएनए फ्रैगमेंट्स यूजिंग ओवरलैपिंग एंड्स, ठीक है। तो ये सब आपको कॉलोनी पीस है। कॉलोनी पीसीआर इज डायरेक्ट एम्प्लीफिकेशन फ्रॉम द बैक्टीरियल कॉलम।
ये जनरली कब यूज आएगा, जब आप रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू नो दैट वेदर द बैक्टीरिया इज रिकॉम्बिनेंट और नॉट, सो यू विल डू दी कॉलोनी पीसीआर। यू कैन सी आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया, मीडिया पे आपको ये कॉलोनीज दिखी, देन यू हैव कल्चर द ट्रांसफॉर्म्ड कॉलोनी इन द पीसीआर रिएक्शन, आप डायरेक्टली कॉलोनीज डाल रहे हो, देखो, and then you will have a result that whether it has the transformed gene or not, ठीक है। long range PCR क्या होता है, it will target the long DNA fragments like more than 5 to 30 kb, ठीक। so it is for high fidelity polymerases। so again high fidelity PCR क्या है, for proofreading polymerases, uses proofreading polymerases। इसका एप्लीकेशन हाई फिडिलिटी पीसीआर की जनरली कहाँ जरूरत पड़ेगी, सीक्वेंसिंग, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डीएनए से हम काम कर रहे हैं, आरएनए से हम काम कर रहे हैं, क्लोनिंग हम कर रहे हैं, सो देन वी विल नीड दिस वन, ठीक है। नाउ सी कंपैरिजन, conventional is endpoint, you need to run the agarose gel electrophoresis, qPCR which is a real time one, RT-PCR RNA based, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है वो cDNA में। DPCR it does partitioning, यानी आपका जो भी सैंपल है उसको 1000 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मल्टीप्लेक्स मल्टीपल टारगेट्स करता है, एंड नेस्टेड हाई स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो रेयर म्यूटेशन डिटेक्ट करना है तो डिजिटल पीसीआर यूज करोगे, आरएनए वायरस तो आरटी-पीसीआर, क्वांटिफिकेशन करना है क्यूपीसीआर करोगे, मल्टीपल पैथोजन करना है मल्टीप्लेक्स पीसीआर करोगे, हाई स्पेसिफिसिटी नेस्टेड पीसीआर बिकॉज 2 राउंड्स ऑफ पीसीआर इसमें होते हैं, एरर फ्री क्लोनिंग करना है, देन हाई फिडिलिटी बिकॉज इट इज वेरी एक्सटेंसिव लेंथ का ये होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, आई होप यू लाइक दिट। सो बिना लाइक किए बिना सब्सक्राइब किए मत जाना बिकॉज इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। And in the next fourth part, we will study in detail the most important PCR, that is qPCR. So stay tuned for this.